पहले स्क्वायर से चालू करते हैं यार। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज पेरीमीटर? बेसिकली इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इन easy words, it is length of the boundary. What is the perimeter of square? अब स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो मैं Sir, 4x side of square. बस यस, तो आई विल मेक दिस, अदरवाइज यू विल से सर ये कैसा स्क्वायर है with curved boundaries. This is almost a square, I think. Hmm. So if this is side S, ये S है, this is also S then, and Uday is walking from here to here. So walking पहले 1s किया, 2s किया, 3s किया, 4s किया. So this is the length of the boundary. Perimeter of square is 4 into s, which can be written as 4s also. That means 4 into side. फिर what is perimeter of a rectangle? Sir, 2x length plus breadth. Is equal to 2 into l plus b. किसी को डाउट है फॉर्मूला कैसे आया? नो सर। 2l plus b. किसी को डाउट है तो उदय एक्सप्लेन करो ये फॉर्मूला कैसे आया. एक्सप्लेन करो भाई गाइस. So foreheads and ceilings, explain karo. Om ceiling, can you explain? Sir, there are two lengths and breadths, and we add them and then multiply it by 2. How was your talent X? Sir, it was good. Sir. कितने मार्क्स आए? Sir, I don't know. Results have not came yet. So it will be 2l plus 2b. आंसर की तो आ गई है बेटा. 2l plus 2b. That is equal to 2 times l plus b. Good afternoon, sir. Good afternoon, singer. So we have 2 times l plus b ऐसे फॉर्मूला आता है. Guys, एक इस फॉर्मूला का जस्ट स्लाइट मॉडिफिकेशन है which is also very easy. So that is L plus B is equal to P by 2. L plus B is equal to P by 2. ये इस फॉर्मूला का एक इजी मॉडिफिकेशन. डू वी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Sir. L plus B is equal to P by 2. Then this is about the chapter. और एब्सेंट कौन कौन है पहले मैं देखूं. Kirisha, why are you sending me hi? Sir, Ray is absent. नहीं, एक सेकंड में अच्छे से दिखा. हाँ. Hello. हेलो. Sorry, sir. Actually, गाइस थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है. है सीफू नानी ज्वाइंट? ओए सीफू नानी की तो वेट कर रहा था मैं. चलो गाइस क्वेश्चन करो फिर हम क्यूब्स और डाइस कंप्लीट करेंगे.
Sir, sent to ma'am. Way Singer has got it correct. The cool dude Ray has also joined. Ari Warrior, Ray and Prime Ambassador. Sir, sent. Tifu Nani. How can you get such a question wrong? सर बस भेज दिया 2 सेकंड सर तो एरिया लिखा है अच्छा hidden guy also. So guys always send the units while sending the answers. So perimeter of rectangle is equal to 2 times L plus B. That means 2 times 36 plus 20. That means 2 times of 56. That means this no sign means multiplication. 2 into 56, that is 112 centimeters. So Veda ji, perimeter of a square of side 64 will be 64 into 4. That will be equal to 256 centimeters. Do we understand? Yes, sir. That was for fun. We were just doing these questions for fun, guys. I hope you enjoyed while it lasted. Did you enjoy the easy questions, guys? Yes, sir. We want more. Yes, I'm giving you the easiest questions in Olympiads. Just give me 1 second. Sir, not cubes and dices. Today we want to finish it, the easiest chapter of the book. सर से खत्म हो गए खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी भी एक कंसेप्ट बचा है, सर ये छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पर तो मैंने रिकॉर्डिंग ओवरलैपिंग वाला रुक जाओ मैं बता रहा हूँ कौन सा वाला. तो हेलो Yes. सर Hello. सर आई सॉ द रिकॉर्डिंग That's great, Peter. That is only expected of you. You have done a wonderful job. 8th question. '18th, not 8th, 18th. रुको यार, पहले एक इससे इजी करते हैं क्वेश्चन. पहले हम करते हैं 23rd. ये सबसे इजी क्वेश्चन है. चलो, फिर हम आएंगे 18th पे. Oh, my chat box is not working. Then Girisha, you will have to do a self check. Okay, sir.
Ari, camera on. So I am in the car. Veda, camera on. सर मैंने एक्स को डब्ल्यू पढ़ लिया. अच्छा. यस सर. अच्छा. अब बेटा ABCD तो मैं किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा रहा अभी करंटली, वरना आपको शिफ्ट होंगे. कुछ और है चाहिए तो बताओ. चलो गाइस, व्हेन यू विल अनफोल्ड और फोल्ड दिस क्यूब बैक, अनफोल्डेड तो है, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे और एक्स और टी अपोजिट होंगे. डू वी अंडरस्टैंड रे, रीवा, मित्तल जी? Yes, sir. पक्का ध्यान रहेगा. So I will see. तो इसमें आपको बताना है अपोजिट टी. मैं 1 सेकेंड से भी कम दूंगा. फेस अपोजिट टू ई. 2 क्वेश्चन दे देता हूं. एंड फेस अपोजिट टू ए. ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको. ई के कौन सा फेस अपोजिट होगा और ए के कौन सा फेस अपोजिट होगा. गिरीशा, वाई इज योर कैमरा ऑफ? Sir, today my टुडे व्हाट? sir, देयर इज समथिंग वेरी डेंजरस गोइंग ऑन, आई कैन अंडरस्टैंड. I'm in the car. ओ. A woman had stuck her car right in front. Sorry. ओके. Sir, I just came from a competition. विच कंपटीशन? Some music. ओ. तो गाइस टाइम पे जैसा मैंने बताया, ई के अपोजिट होगा बी. अभी तो बताया है ए के अपोजिट सी. उदय, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर फोल्ड करेंगे तो ई के अपोजिट बी होगा और ए के अपोजिट सी होगा. क्या उदय? अदरवाइज इमेजिन कर लो. अब मैं आपके माइंड में घुस के तो इमेजिन नहीं कर सकता, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. मैंने 2 मिनट से मैं वापस फोन करके उस क्वेश्चन में. चलो 18th करो. Sir, I didn't understand this question. Who didn't understand? Name. Sir, Arif. Were you present in the previous class? Yes, sir. Then beta you wait, I will explain. Sir, I was present on Saturday. The concept is difficult, no doubt. Sir, no questions. करना कैसे?
ऑलराइट गाइस, लेट्स सी। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं? फर्स्ट हम अपोजिट फेसेस को मार्क कर देते हैं। तो सर्कल के अपोजिट है ट्राइंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट है फिल्ड ट्राइंगल, और ये ऑलमोस्ट एक स्क्वायर सा है, स्क्वायर के अपोजिट है ये रेक्टेंगल विथ दिस क्रॉसेस। डू वी अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये अपोजिट फेसेस हैं। No, sir. नाउ द रूल इज कि अपोजिट फेसेस एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो अपोजिट है तो एडजेसेंट हो ही नहीं सकते। यहाँ पे मुझे एडजेसेंट मिल गया, ये दोनों, तो ये क्रॉस हो गया। कोई डाउट इसमें? No, sir. यहाँ पे मुझे ये दो एडजेसेंट मिल गए, तो ये भी क्रॉस हो गया। ये यहाँ पे अपोजिट है, कोई डाउट इसमें? No, sir. यहाँ पे मुझे ये दोनों एडजेसेंट मिल गए, तो ये भी अपोजिट होने चाहिए थे, तो ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ पे मुझे कोई भी अपोजिट फेसेस एडजेसेंट नहीं दिख रहे। नाउ गाइस, ये जो है ये इजी क्वेश्चन है। किसका? किसका इजी क्वेश्चन है? क्यूब का। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, नॉट एन टफ क्वेश्चन। इसके बाद जो मैं एक दो कराऊंगा वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल और हायर जाएगी। तो आरित मित्तल जी, एनी सिंगर उदय किटू एंड ग्रेट वेदा, प्राइम वेदा, हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑल्सो, हैव वी अंडरस्टूड? Yes. Sir, could you explain once more? आई कैन एक्सप्लेन वंस मोर मैन। तो Thank you. पहले बेटा, हमने उदय अनम्यूट करो। रूल इज दैट यू हैव टू कीप ऑन Yes, अनम्यूट। sir. मैंने अपोजिट फेसेस मार्क किए, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये दोनों होते हैं, और ये दोनों होते हैं। ये बात समझ में आई? Yes, sir. फिर अपोजिट फेसेस के बाद मैंने लिख लिया ऐसे, नोट डाउन कर लिया, और नहीं भी नोट डाउन करो, इट्स अप टू यू। अब मैंने क्यूब्स में देखा, जैसे मेरा ये फेस, दिस वन एंड दिस वन अपोजिट होता तो सामने होता, एडजेसेंट है तो साथ में है, तो साथ में आ गया। पर ये तो इसके अपोजिट साइड होना चाहिए था मेरी डाइस के या क्यूब के, Yes, sir. तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ये यहाँ पे है तो ट्राइंगल इसके पीछे होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऐसे ही दिस ट्राइंगल एंड शेडेड सर्कल, ये दोनों के, ये ऊपर है तो ये नीचे होना चाहिए था, पर ये तो साथ में हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। Yes, sir. Now I understand. नाउ यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज एन इजी वेरिएंट, कोई उसमें पंगा नहीं है ज्यादा, इजी वेरिएंट है। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस पंगे वाले करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन करो, फिफ्थ कर लो। हाँ, फिफ्थ करो, बस ओनली फिफ्थ। सर क्या करना है इसमें? सॉल्व करना है बेटा। विच ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड इफ यू फोल्ड दिस क्यूब? क्या ऑप्शन वन फॉर्म हो सकता है, क्या टू फॉर्म हो सकता है, क्या थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, वन एंड थ्री हो सकते हैं, बस वन टू थ्री फोर सभी हो सकते हैं। ये करना है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कौन से फॉर्म हो सकते हैं। यस। Sir, after giving the answer, can I go to the washroom? Yes, after giving the correct answer, you can go and watch the room. Sir, on the second cube, beside the star, it has a square or a rectangle. But that you have to figure it out yourself, ना? हम ग्रेड थ्री की तो क्लास नहीं है ना बेटा, ये सब मैं ग्रेड थ्री में इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं।
तो गाइस this and this will be opposite to each other. This and this will be opposite to each other. And this will be opposite to each other. Do we understand? So, which one can we cross out? Batman, आप बताओ, Batman and Kittu. Which one can we cross out? That's the second option. Second option, very good, because ये दोनों adjacent है, तो ये cross हो गया. Second cross हो गया, तो T option cross हो गया. किटू आप बताओ और कौन सा ऑप्शन क्रॉस कर सकते हैं? So कहने थे नो. um, बताओ बताओ. और सर से पहले सर 4 4. Yes, because these two should be opposite to each other. तो 4 से क्रॉस होने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि 4 तो था ही नहीं. तो अभी के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये अपोजिट अपोजिट है, 1 and 3 कैन बी फॉर्म्ड. बट हमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी से देखना पड़ता है. अगर मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा तो यू विल से कि सर टाइम पास हो रहा है, सर कुछ हो नहीं रहा है, ये तो जरूरत ही नहीं थी. So that's why I won't tell you in this question. I will tell you in the next question. तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, सिक्स्थ वन, इन विच यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. गाइस करो, मजा आएगा सिक्स्थ. same question which will form. यस, क्वेश्चन इज द सेम, बट कॉम्प्लेक्सिटी यू विल अंडरस्टैंड क्यों बढ़ रही. So can I go to drink water? If your answer is correct, then yes, you can go to drink water. Sir, I have not solved the question properly. I accidentally sent it. बेटा यू कैन रीसेंड देन. आपने चेक होने से पहले बता दिया था. एंड दिस इज अ टफ क्वेश्चन, सर. आई वांट यू टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी. ग्रेट वॉरियर ऑफ पंजाब. चलो गाइस, लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, these two are opposite, these two are opposite, and these two are opposite. तो गाइस पहले आप देखो कि रुपीज अपोजिट टू ए, तो रुपी और ए तो एडजेसेंट हो ही नहीं सकते.
तो मैं 1 और 4 तो पहले ही क्रॉस कर देता हूँ. डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, Yes, yes. sir. नाउ गाइस, ये दोनों बचे. अगर ये लास्ट क्वेश्चन होता तो मैं बोल देता अच्छा 2 एंड 3 में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपोजिट हो और एडजेसेंट दिया हो. ऐसा है कोई फेस? इस एक फेस रुपी है, वन इज के एंड द अदर इज ए. रुपी और ए, रुपी के और डॉलर है, रुपी के और डॉलर, तो सब कोई भी ऐसा नहीं है विच शुड बी अपोजिट एंड इट्स एडजेसेंट इफ यू नोटिस 2 एंड 3. एम आई राइट? Yes, But sir. still we will have to check which is the correct option. Why? Because we are given the option only 2 and only 3 also, and 2 and 3 only, both option 3, all the 3 options are given. So I cannot eradicate any other option just by seeing the opposite faces. I will have to check कि क्या ये क्यूब एक्चुअली फॉर्म हो रहा है कि नहीं. फॉर चेकिंग दैट, एट द टॉप आई हैव रुपी साइन. तो मुझे रुपी को इस क्यूब में ऊपर रख के इमेजिन करना पड़ेगा कि के और डॉलर में विच इज ऑन द राइट एंड विच इज ऑन द लेफ्ट. तो उदय, प्लीज डोंट रोम हियर एंड देयर इवन इफ यू हैव गॉट इट करेक्ट. सिट डाउन, इट्स अ Yes, डिफिकल्ट sir. कंसेप्ट. तो रुपी अगर मैं ऊपर रखता हूं तो यू सी डॉलर के बाद के आता है यहाँ पे, और अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो के बाद डॉलर आएगा. रुपी टॉप में है तो पहले के आएगा, फिर उसके राइट में डॉलर होगा, और यहाँ पे उल्टा है, डॉलर के बाद की है. तो ये मेरा क्रॉस हो गया. जब डॉलर टॉप पे है देन के बाद ए आएगा. सो दैट इज वाई द थर्ड ऑप्शन विल बी ट्रू. दिस इज अनदर डिफिकल्टी लेवल एडिट. ग्रेड 6 में बस यही मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल है दैट कैन बी एडेड टू अ क्यूब क्वेश्चन. इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो होपफुली वी हैव अंडरस्टूड. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आने की इतनी डिफिकल्ट चांसेस कम होते हैं, बट इट कैन कम. सो इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है. लेट्स सी. सेवेंथ वन. So send to ma'am.
All right. So, guys, the great warrior of Punjab. I am explaining Uday. Let me explain first. So, A is opposite to E. Then B is opposite to which one, Uday? B किसके opposite होगी? सर बी डी के अपोजिट। और F C के opposite होगी। Yes, अब गाइस आप देखो, कहीं पे हमें जो बी डी एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे आई एम गेटिंग बी डी टुगेदर, देन आई एम गेटिंग एफ सी टुगेदर हियर। सो बी एंड डी ऑप्शंस तो पहले ही क्रॉस हो गए। तो हु सेंट बी और डी ऑप्शन, पहले तो मुझे ये बता दो। तो मैं कंफ्यूज हो गया था। सर मैंने हम्म, सर मैं तो फिर बी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। ये इजी कंसेप्ट था हमारा। अब डिफिकल्ट कंसेप्ट है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग टू ऑप्शंस विच, जिसमें कोई भी ऐसा रॉन्ग चीज नहीं है कि ऑपोजिट फेसेस को हमने एडजस्टेंट कर दिया हो, ये डिस्क्रिपिशन नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वील हैव टू इमेजिन। आप बी को टॉप पे इमेजिन करो, तो पहले क्या आएगा? अगर आप बी को इमेजिन करते हो तो आपका ई यहां आ जाएगा, तो ई के बाद एफ आएगा। सो ई विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ ई एफ, जबकि यहाँ पे एफ है, तो ये रॉन्ग हो गया। अगर आप डी को टॉप पे इमेजिन करो तो सी तो यहां पे रहेगा, ए यहां आ जाएगा, तो सी के बाद ए आएगा, लाइक दिस, विच इज करेक्ट। यस सर। तो ए और सी में यू विल हैव टू इमेजिन एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो प्राइम वेदा कैमरा ऑन। आई होप वी हैव अंडरस्टूड। यस और नो? सर लेकिन सर सर अगर वो सी ए है तो फिर वो ए सी नहीं हो जाएगा? बेटा सी ए और ए सी में डिफरेंस है, मैं फर्स्ट डे से यही बात कर रहा हूं। एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। कोई भी क्यूब है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द क्यूब, वन सेकेंड, वेयर आर यू एनी, या हियर। तो एनी दिस इज द क्यूब, टॉप पे क्या है? 5 है ना? तो अगर आप ऐसे देखोगे, आपको राइट में 3 दिखेगा, लेफ्ट में 1 दिखेगा। कभी भी लेफ्ट में 3 और राइट में 1 नहीं दिखेगा। यस। तो यही है, अगर आप एक को टॉप में इमेजिन करो तो बाकी अल्फाबेट्स का एक फिक्स ऑर्डर होगा कि पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है। अगर इसके इमीडिएट बाद देखोगे वो अलग होगा, इसके इमीडिएट बाद वो अलग होगा। अंडरस्टूड? आप सी के जो नेक्स्ट जा सकते हो, सी के बाद जो, या उसके बाद से, यू कैन गो फ्रॉम ए टू सी, बट वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अच्छा ओके। So you have to understand all this and imagine and do it. I have given you a complex, I have given you a method at least to solve this question. Otherwise, in most places, you won't find the method. You will have to imagine and do these questions. Right, Riva? So Riva got a punishment for being lazy from his school teacher, sports teacher. He had to run 4 rounds of his ground, which is 100 meter by 60 meters. Find the distance run by Riva. सर अगर लेजी होऊंगा तो कम रन करूंगा ना, तो सर बताओ ना कितना किया, कितने राउंड? बेटा मैं अब क्या बताऊं, टीचर ने आपकी लेजीनेस हटाने के लिए पनिशमेंट दी है ना। अच्छा ओके। हम्म। और मुझसे आप क्यों बोल रहे हो? तो स्पोर्ट्स टीचर ने दी है, आई एम नॉट योर स्पोर्ट्स टीचर। राइट रीवा? आई विल नॉट गिव यू दैट पनिशमेंट। यस सर बट पता ओके।
Ari, you must have reached home. No, you are still driving. Okay. Sir, one round of the ground is 100/60. Beta, I don't. You have to use your own mind, na? Hmm. I read the question from Tifu, please send the units as well. This is a grade 4 question. Sir, can I resend? No. मैंने गलती नहीं Time करी। Veda, Princess, Singer, Uday, Kitu, welcome to grade 4, guys. My heartiest welcome to you. नहीं sir. तो guys देखते हैं. This is 100 meters and this is 60 meters. तो first of all, whilst before solving, आप इस ground का perimeter निकालोगे. Perimeter of ground will be 2 into L plus V, that is 100 plus 60. That is equal to how much? 100 plus 60. That is equal to 320. चाहे आपने 100/60 लिखा है सर, मल्टीप्लाई लग रहा। बेटा बाय 60 का मतलब होता है एक साइड 100 है, दूसरी साइड 60 है. इसलिए तो पनिशमेंट मिला था, आप पे अटेंशन नहीं कर रहे थे. नाउ दिस इज वन राउंड, सो 4 राउंड्स विल बी हाउ मच? 320 into 4, that is equal to 1280 meters. All right, understood guys? कोई प्रॉब्लम होते समझ आ गया? Yes. सर आज 5 मिनट पहले छुट्टी दे दो, 5 बजे। एक्स्ट्रा टाइम करना है आपको? नहीं नहीं। हाँ, हाँ कितना सर। गुड है बच्चे हमारे ना, सीरियसली. तो singer has to lay new floor for his room, which is 65 meters by 30 meters. The cost of flooring is rupees 30 per meter. Find the total cost paid by singer's mom. Sir, we have to find the area. Oh wait, yes ये एरिया का क्वेश्चन दे दिया, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. सिंगर हैज टू ले न्यू, मैं तो चेंज करने वाला नहीं 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 कोई बात नहीं. निकाल देगा। न्यू क्या बोले हम? फेंस We can do area. फॉर हिज रूम विच इज 30. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीज 35 इन द टोटल कॉस्ट. अब ठीक है, फेंस कर दिया गाइस. तो सेम ही होएगा। सर मेरे को रुपीस का सिंबल मिला नहीं तो मैंने डॉलर्स का भी
Those who will get these questions wrong will do overtime. Sir, I have sent. Sir, those who get these questions wrong will do what? Overtime. Sir, I forgot to send the unit. Okay, guys, let's see. So, perimeter of singers ग्रैंड रूम, बिकॉज हमें फेंस करनी है, जब भी हमें फेंस करनी होती है हम पेरीमीटर करते हैं। और यहाँ पे गाइस पर मीटर लिखा है, जहां पे भी पर मीटर लिखा उससे आप हिंट ले लो कि पेरीमीटर ही होगा। स्क्वायर मीटर होता तो वी वुड हैव कंसीडर्ड एरिया। सो पेरीमीटर ऑफ सिंगर्स ग्रैंड रूम इज 2 times 65 plus 30, that is 2 times 95, that is 190 meters. My goodness, is it a room or full playground? Now what? Then cost per meter is equal to how much? Rupees 30. So cost of 190 meters. क्या हो गया? 190 meters will be equal to 190 into 30. That is equal to rupees 5700. Sir, I sent this only. Oh, sir, I sent 570. I forgot to add a zero. Okay. सर मैंने गलती से कर दिया, मैंने उनसे भी मल्टीप्लाई करके उसी द्वारा में 30 को कर दिया मल्टीप्लाई। Wait. Find the length of a rectangular field whose breadth is 28 and perimeter is 164 meters. जल्दी से करो guys. These questions are specially made for you from grade 4-5 class. Okay. Princess, beta, what is happening today? सर मैंने पढ़ लिया whose breadth is 28 meters and length is 5.6. तो गाइस हम क्या करेंगे?
एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ विच यू कैन यूज, अदरवाइज यू कैन डू इट। एक जो ट्रेडिशनल ग्रेड 4 मेथड था वो हम क्या करते थे, पहले 28 into 2 करते थे, which gives me 56. Then we will do 164 minus 56. That will be 108. Then we will do 108 divide by 2 to get 54. ऐसे ही करते थे ना। So in grade 6 we can do what? पहले तो 2 into L plus B है is equal to 164. So 2 times L plus 28 is equal to 164. Now I can divide 2 from both sides or bring it to the denominator. So L plus 28 is equal to 82. So then L will be equal to what? 82 minus 28. That is equal to 54. इसका एक छोटा सा अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखना चाहो वो भी आप लिख सकते हो। L plus B is equal to perimeter divide by 2. इससे easy हो जाता है बहुत, which implies that L that I don't know plus 28 will be equal to directly perimeter divide by 2. Perimeter divide by 2 will be 82. Directly you will get L is equal to 82 minus 28, that is equal to 54. So whichever method you use, just give me the correct answer. सर मेरे को फोर्थ क्लास वाला मेथड नहीं समझ आया। फोर्थ क्लास वाला मेथड ये होता है बेटा कि हमारा ये रेक्टेंगल है ना, ये एक ब्रेथ हमें 28 दी है तो दूसरी ब्रेथ भी 28 है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल 164 से माइनस कर लेंगे, तो 56 माइनस कर लिया, वॉट एवर इज रिमेनिंग आई विल डिवाइड इट बाई 2 टू गेट द लेंथ। ओके, नेक्स्ट is then Annie's grand room's flooring was done for rupees 11,800. If the length of her grand room is 150 meters and cost of flooring the room was rupees 20 per meter, find the breadth of Annie's grand room. Guys, ये क्वेश्चन ट्राई करो। The flooring means fencing, right? ओ फिर से फ्लोरिंग कर दिया मैंने, फिर से फेंसिंग है। I don't know why I'm doing flooring again and again. सर एक रूम की फेंसिंग कैसे हो सकती है? बाउंड्री पे तो कुछ तो करोगे ना, एनी का रूम है वो, यू कैन डेकोरेट इट विद समथिंग। So Annie, on Friday you guys have a holiday? सर सर सैटरडे से
क्या? सर 18 से है शायद से। सर थर्सडे को है हॉलीडे। ये सर आई डोंट थिंक फ्राइडे को है। थर्सडे को Thursday- क्यों हॉलीडे है? थर्सडे को क्यों है? पता नहीं बस है। पूरे स्कूल का या आपकी क्लास का? स्कूल का आई थिंक। सर विश्वकर्मा पे हॉलीडे इतना पता है। तो सेंट All right. Guys, this question can easily be solved by using the formula or without using the formula. That perimeter will be equal to total cost of fencing divided by cost per meter. So total cost of fencing क्या है? 11,800. Per meter cost कितनी है? 20. So I will cut it. I will get 590 meters. This is my perimeter. If this is my perimeter and I am given the length, so I can use length plus breadth is equal to perimeter divided by 2. Length is how much? 150. Breadth, I have to find perimeter divided by 2 will be how much? 590 divided by 2. That will be equal to 245. So breadth will be equal to 245 minus 150. That is equal to 95 meters. So Princess, Hidden Guy, Sifu, Uday, Kitu, S2, Om, Ray and Ari. तो गाइस अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें कॉस्ट पर मीटर से तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है. वंस वी गेट पेरीमीटर इट्स वेरी इजियर टू फाइंड व्हाट इज मिसिंग, राइट? So okay kids, that's all for today. I'll see you in the next class. Bye bye. Enjoy. Have a nice day. Bye.